Assalamualaikum. Today topic of discussion is the sport and the movement in the amphibians, water boys and sport aquatic animals. वाटर बॉयज़ का मतलब होता है कि वाटर की बायांड प्रॉपर्टी है या उसको तैरने में हेल्प करेगा, एनिमल्स को सपोर्ट करता है, एक्वाटिक एनिमल्स को जो पानी में रहते हैं. द स्केलेटन ऑफ द फिश function primarily in protecting internal organs, providing point of attachment for the muscles and keeping the body from collapsing during movement. What is the function of the skeleton of the fish? Protection of internal organs, second attachment of the muscles, and third one prevention of collapsing body during movement. In the terrestrial vertebrates, however, the skeleton is modified to provide support against the gravity. डेफिनेटली ग्रेविटी इज़ की जो फोर्स है वो हर मैस को ज़मीन के सेंटर की तरफ खींच रही है. तो जो स्केलेटन है वो मॉडिफाइड होता है सपोर्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी प्रोवाइड करने के, क्योंकि देखें एनिमल्स ने ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करना होता है. तो वो सपोर्ट कहाँ से मिलेगी? स्केलेटन से. एंड इट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू सपोर्ट द रिलेटिवली पावरफुल मसल्स that propel the terrestrial vertebrates across the lands. And all of you people know many terrestrial vertebrates, they are very agile. You can take the example of the leopard, cheetah. Most of these animals have the speed of the 70 kilometer per hour, so they have very powerful muscles, and it is necessary to maintain such high speed with powerful skeleton. The amphibian skull is flattened. I will show you in the lab. It's relatively smaller and have fewer means less bony elements than the skulls of the fishes. This is the comparison between the fishes and the amphibians. Their skull are smaller and the less bony elements than fishes. These changes lighten the skull so that it can be supported out of the water. अब ये क्यों अडाप्टेशन है? ये अडाप्टेशन इसलिए है कि स्कल लाइट हो जाए. स्कल जब लाइट होगी तो एनिमल तभी वाटर के बाहर भी अपने आप को सपोर्ट कर सकता है. Changes in the jaw structure and the musculature also allow terrestrial vertebrates to crush prey in their mouth. अब इनके जा के स्ट्रक्चर, जबड़े के स्ट्रक्चर के अंदर भी चेंज आएगा और मस्कुलेचर मसल्स के अंदर भी चेंज आएगा, जिसकी वजह से जो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं वो अपने मुंह के अंदर क्या कहते हैं, अपने प्रे को चबा सकते हैं, ये क्रश कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं. The vertebral column of the amphibians is modified to provide support and the flexibility on the land. It acts somewhat like the arch of suspension bridge by supporting the weight of the body between the anterior and posterior paired appendages. Okay, let me show you with the help of the diagram. These are the anterior appendages and these are the posterior appendages. अब इनका जो skeleton है वो इस तरह से modify है, ये इनकी body कि इनकी जो बाकी abdominal region है, जैसे दो bridges के जैसे दो आर्क्स के दरमियान एक ब्रिज नहीं बना होता, इस तरह से है. Sportive processes called zygapophysis is important from examination point of view. On each vertebrae prevent twisting. ये देखें, ये एक lateral view इन्होंने एक आपको इसका दिखाया हुआ है वर्टिब्रल कॉलम का, और ये यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं ज़ाइगोपोफिसिस. ये क्या कहते हैं, वर्टिब्रे से स्पोर्टिव प्रोसेसेस, ये छोटे छोटे प्रोसेसेस निकल जाते हैं. इनका काम ये होता है कि ये वर्टिब्रे को ट्विस्ट या बेंट होने से बचाएं. Unlike fishes, amphibians have a neck
एम्फीबियंस के नेक है और फिश में नेक नहीं होती। द फर्स्ट वर्टिब्री इज़ द सर्विकल वर्टिब्री, इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। पहला जो वर्टिब्री होता है उसे सर्विकल वर्टिब्री कहते हैं। विच मूव्स अगेंस्ट द बैक ऑफ द स्कल, ये मूव्स करता है अगेंस्ट द बैक ऑफ द स्कल एंड अलाउ द हेड टू नोड वर्टिकली। और ये यस की मूवमेंट जो होती है ना वो होती है सर्विकल वर्टिब्रे की वजह से, यानी सर को हिलाना यानी आगे और पीछे। द लास्ट ट्रंक वर्टिब्रे इज़ द सैक्रल वर्टिब्री। ये देखें, ये जो लास्ट ट्रंक वर्टिब्री हैं इन्हें सैक्रल वर्टिब्री कहा जाता है। द वर्टिब्री एंकर द पेल्विक गर्डल टू द वर्टिब्रल कॉलम। अब ये देखें, सैक्रल वर्टिब्री जो हैं ये पेल्विक गर्डल के साथ अटैच करते हैं बॉडी को। A ventral plate of the bone is called sternum, is present in the anterior ventral trunk region and support the forelimb and protect internal organs। और भाई एब्डोमिनल रीजन के बिल्कुल दरमियान में एक बोन होती है, उसे कहते हैं स्टर्नम। उसका क्या फंक्शन होता है? इसने सपोर्ट प्रोवाइड करनी है फोर लिम्स को, अगले लिम्स को या बाजुओं को आप कह लें, और इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। It is absent or reduced in neura. This is important from examination point of view. Neura के अंदर आपको ये नहीं मिलेगी। The origin of bones of vertebrate appendages is not precisely known. However, similarity in the structures of bones of amphibian appendages and the bones of the fins of ancient sarcopterygian fishes suggest possible homologies. Exactly भाई जो bone origin है वो हमें अभी तक मालूम नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि जो एम्फीबियन अपेंडेजेस के हैं उनके अंदर जो बोन की स्ट्रक्चर है उसकी यानी अरेंजमेंट सेम है सर्कोटेरिजियन फिशेस की फिन के साथ। जॉइंट्स एट द शोल्डर, हिप, एल्बो, नी, रिस्ट एंड एंकल allow freedom of movement and better contact with the substrate. The pelvic girdle of amphibian consists of 3 bones, the ilium, ischium and pubis. This is ये अगर आप डायग्राम में देख लें, ये इलियम है और ये पेल्विक गर्डल है, इसके अंदर इलियम, इस्चियम और प्यूबिस तीनों बोन्स हैं। और ये फिर्मली कहते हैं सख्ती से अटैच करवाती हैं पेल्विक अपेंडेजेस को वर्टिब्रल कॉलम से। दीज बोन्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल टेट्रापोड्स बट नॉट फिशेस आर इम्पोर्टेंट फॉर स्पोर्ट ऑन द लैंड्स। ये तमाम टेट्रापोड्स चौपायों में मिलेंगी लेकिन फिशेस में नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये है कि ये जो तीनों बोन्स हैं ये लाइफ को सपोर्ट करती हैं ऑन लैंड। टेट्रापोड डिपेंड ऑन मोर ऑन अपेंडेजेस देन ऑन द बॉडी वॉल फॉर लोकोमोशन। अब टेट्रापोड जो हैं वो डिपेंड करते हैं अपनी टांगों पे या लिम्स पे, अपेंडेजेस पे लोकोमोशन के लिए, बजाय इसके कि वो अपने बॉडी मस्क्यूलेचर पे डिपेंड करें। Thus the body wall musculature is reduced, body wall musculature reduce हो गया और appendicular musculature जो है predominance है, यानी मसल्स जो हैं अब बॉडी के अंदर कम होंगे और जो लिम्स हैं उनके अंदर ज़्यादा आपको क्लियर नज़र आएंगे। जो ये कहते हैं जी अगर आप एक फ़िश डिनर में खा रहे हैं और आप उसको फ्रॉग की लेग के साथ कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली मसल्स का काफ़ी फ़र्क होगा। Salamanders employ a relatively unspecialized form of locomotion that is reminiscent of undulatory waves that pass along the body of the fish. Terrestrial salamanders also move by the pattern of the limb and body movement, in which the alternate movement of appendages results from muscle contraction that throw the body into the curve to the advance। ये आप यहाँ पे मस्कुलेचर देख लें सैलमेंडर की लोकोमोशन का। अब देखें एक तरफ के मसल्स जो हैं रिलैक्स करेंगे तो दूसरी तरफ के कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ से इस तरह से बॉडी मूव कर रही है और ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब देन ये वाले मसल्स जो हैं ये अपना वर्क परफॉर्म करेंगे और इस तरह से सो ऑन इनकी मूवमेंट होती रहेगी। सिसेलियंस में जो अकॉर्डियन लाइक मूवमेंट है जिसमें एडजेसेंट अकॉर्डियन लाइक जैसे सुंडी नहीं मूव कर रही होती उस तरह से मूव करेंगे बॉडी पार्ट्स आगे या बैकवर्ड। इनकी हाइंड लिम्स जो है वो लॉन्ग होंगी जंपिंग के लिए और प्रीडेटरी लाइफस्टाइल है इनका। ज़्यादातर इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होंगे और पेक्टोरल गर्डल और फ्रैक्शन एब्जॉर्बर भी मौजूद होंगे।
ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया।